Today we are starting with lenses, refraction, the last part of refraction, that is lenses. A lens is an optical device made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces. So lenses which are used in optical instruments are usually made up of glass. Nowadays, lenses which are used in different optical instruments, spectacles, they are also made up of fiber or plastic or polycarbonate, they say. When you wear spectacles, you see the world through pair of thin lenses. Lenses are used in telescopes to see far off objects, in microscopes to see very small objects, in photographic camera, in binoculars, etc. Spherical lenses can be broadly classified into two types. The first type is a convex lens. A convex lens is made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces such that it is thick in the middle and thin at the edges. This is how spherical lens is constructed. It is thin at the edges and it is thick at the center. So these lenses are known as spherical lenses for a reason, because they are made out of a sphere. The surfaces, both the surfaces of a lens are part of a sphere. So there are two spheres shown over here. Okay, so lenses surface are part of these two spheres. Okay, so C1 and C2 are centers of curvature of the two surfaces of the lens, and it is also known as a biconvex lens or a double convex lens. So if you see here, you can see two centers, C1 and C2. These are the centers of curvatures of these lenses, centers of curvatures of both the sides of the spherical lenses, and these are the centers of the spheres of which the surface of the lens is a part. This is a biconvex lens because both the sides are bulging out. So this bulging out is a characteristic look of the convex lens. Its sides are not flat, they are bulging out. Both the sides are bulging out means biconvex or double convex. A concave lens looks like this. This is a concave lens. Its surfaces also are part of two spheres which are kept slightly away from each other, then fused together. Here the spheres are intersecting with each other. Here the surfaces are not intersecting, they are just near each other and they are fused together. So that space between uh, two spheres placed near to each other is known as a concave lens. Here both the surfaces, if you note, are caved in. So you call it concave, caved in surfaces. Caved in surfaces are characteristics of concave lenses, caved in surfaces. They are caved in from both the sides. Caved in surfaces. So this is caved in from both the sides, so it is also known as biconcave lens or double concave lens. And also you can note one thing, it is thicker at the edges and it is very thin at the middle. Thin at the middle, thick at the edges. Generally, those who wear spectacles, they will find this lens in their spectacles, concave lenses. So,
let me give you more types. Lenses, two types: convex, concave. Convex also has two types. Which is this one? Biconvex. What do you call it? Biconvex. Then one side plane and one side convex. Plano-convex. Plano-convex. And one side concave and the other side convex. Concavo-convex. Concavo-convex. In convex also there are three types. One is like this. Biconcave. Plano concave. And the next one is convexo concave. Three types of lenses. Three types of convex and three types of concave. So the lenses which are used in your spectacles are mostly concavo-convex if you have hypermetropia or plus power or nearsightedness, or they are convexo-concave if you have myopia or long-sightedness or minus power. So these two are used in optical lenses. The other two are also used in different instruments, different places. So why we are studying lenses? Because they are transparent mediums. Lenses are transparent mediums. Can you give me an example of a natural lens? Yes. Your eyes also have lenses. How many lenses do your eye have? One. Two, na? One मतलब क्या? Actually, you have four lenses. Sorry. दोनों को मिला के 4. एक आंख में 2 लेंस होते हैं, बट जो एक्चुअल लेंस है जो आई के अंदर होता है उसको हम लेंस बोलते हैं. जो बाहर वाला पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्निया बोलते हैं, वो भी एक लेंस है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम. नाम है, ऐसे ही रख दिया है नाम. नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बनाया. ये थोड़ा और थिन होता है मिडल में. ये मिडल में थिन होता है और एजेस पे थिक होता है. ये मिडल में थिक होता है और एजेस में तो है ही थिन. सो दिस इज कॉन्वेक्स एसेंशियली एंड दिस इज अ कॉन्केव लेंस. वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है, नाम उल्टा है, बाकी उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं. सो नेचुरल लेंसेज आर इन योर आईज,
कॉर्निया एंड द लेंस, ऑप्टिकल लेंस या फिर क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, मतलब आंख के अंदर जो लेंस होता है, विच हेल्प्स यू टू सी. These are natural lenses, but generally the lenses which we use are glass or any transparent medium. But why are we studying lenses in refraction? Because we know that whenever a ray of light passes through a transparent medium, it bends. It bends. So the objective over here is to bend the ray of light. हमें ray of light को bend करवाना है, इसलिए हम lenses use करते हैं. तो bend करके होता क्या है? तो जैसे सपोज मेरे पास आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. अगर इसके ऊपर मैं रे ऑफ लाइट को, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट करता हूं, दीज आर इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, ठीक है. तो ये क्या होगा पता है? दे ऑल will meet at a point which is known as focus. They will all focus, converge and meet at a point. बेंड हुई रे ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट मीडिया के थ्रू पास होने के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ. सो रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन है लेंसेज. We will use the property of refraction or bending of ray of light to our own benefit using lenses. And in the same way, if you take example of a concave lens, what happens? The rays of light which are incident on a concave lens, after refraction, they diverge. यहाँ पे और एक रे ऑफ लाइट बना सकते हो. So the incident rays of light, they diverge after refraction. Here the incident rays of light converge after refraction. ठीक है. अब अगर तुम इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो दे विल मीट समवेयर ओवर हियर. इसको बोलते हैं फोकस. मतलब रेज ऑफ लाइट ऐसा लगता है कहीं से ऐसे एमिट हो रही है इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस. सो यहां भी हम लोग बेंडिंग का एप्लीकेशन या फिर यूज कर रहे हैं. So basic idea about lenses is we use them to bend the rays of light according to our need, to focus them or to diverge them. Now to properly understand the application of lenses, you must understand lenses themselves. Means उनका characteristic क्या है, उनका उनसे associated terms, जो technical terms है वो पढ़ने पड़ेंगे हमें. That we are going to learn now. The first term, aperture. The area of the lens available for refraction is called the aperture of the lens. Aperture मतलब यहां से लेके यहां तक, ये पूरा अपर्चर है. ऐसा पीछे साइड भी एक अपर्चर है. The area of lens which is available for refraction is called aperture of the lens. इसके बाद है principal axis. A straight line passing through the centers of curvature of the two surfaces of the lens is called the principal axis. Let me just draw a lens properly and give you all these terms, and let's learn them together.
सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेंसेस में। So there is a point over here in both the lenses which is O. This is known as optical center. I'm coming to optical center. First, let me start with number one, principal axis. प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL है ना तुम्हारी बुक में? Principal axis. What is principal axis? Principal axis is an imaginary line passing through center of curvatures of the lenses. एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा और एक होगा यहाँ पे। एक्चुअली मैंने फोकस बनाया यहाँ पे, फोकस से तो दूर होता है, ये साइड होता है, ठीक है। सो ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ रिपीट आफ्टर मी टुगेदर एवरीवन विथ लाउड वॉइस आफ्टर मी, आफ्टर आई फिनिश। Principal axis is an imaginary line passing through center of curvatures of a spherical lens. 1, 2, 3. अगेन 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 अगेन, एक तो मेरे को ना ये वॉल्यूम एकदम अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा लाउड क्लियर एंड कॉन्फिडेंट बोलना है। 1, 2, 3. सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, ये स्फेरिकल लेंस, आई एम सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो डेफिनेशन बोल रहे हैं ना, इट इज फॉर बोथ, फॉर बोथ मतलब कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव। कॉमन डेफिनेशन है ये, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस का वही डेफिनेशन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल लेंस। क्लियर? सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर, ये भी फॉर बोथ है। Optical center of a spherical lens is a point through which the incident ray, through which a ray incident on a spherical lens does not bend after, does not refract after, does not bend the ray of light। एक मिनट, ये मैं बना रहा हूं डेफिनेशन, इसलिए थोड़ा सा, एक मिनट। Optical center of a spherical lens is a point through which, when a ray of light is incident, it does not refract. A ray of light incident through optical center on a spherical lens does not suffer refraction. Optical center is that point through which a ray of light क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट मैं दिखाता हूं। passes without deviation, वो ज्यादा अच्छा रहेगा यार, फिर से बोल। Optical center of a spherical lens is a point through which of through which a ray of light, through which an incident ray of light passes without deviation after refraction. Perfect. Passes without deviation after refraction. ठीक है, मैं लिखता भी हूं तुम्हारे लिए ताकि तुमको भी लिखने में इजी हो। प्रिंसिपल एक्सिस तो इजी था, ठीक है। यहाँ पे देखना मत बोलते टाइम, नहीं तो पहले बोल दो। नहीं, पहले मैं लिख देता हूँ, नहीं पहले मैं बोल देता हूँ, रुको पहले मैं बोलता हूँ।
Optical center is a point through which an incident ray of light passes without deviation after refraction. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट में कोई डेविएशन नहीं होता रिफ्रैक्शन के बाद, वो पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जिस पॉइंट के थ्रू पास होने के बाद इंसिडेंट रे ऑफ लाइट में कोई रिफ्रैक्शन, कोई बेंडिंग, कोई डेविएशन नहीं होता आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो अब मैं लिखता हूं यहां पे, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट through which if a ray of light, थोड़ा अभी चेंज हो गया वापस, if a ray of, मुझे लग रहा है ये बेटर है, if a ray of light is incident, it passes without deviation after refraction. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इट passes विदाउट डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन। परफेक्ट, ये परफेक्ट है। यस यस, यू आर राइट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कैसे होगा। ये भी बहुत अच्छा एक नोट करने वाली चीज है। सपोज मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल सेक्शन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, मतलब हम लोग यही सेक्शन से बेंडिंग को दिखाते हैं। ठीक है, जनरली बेंडिंग दो बार होती है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, बट ऐसा ड्रॉ नहीं करना है हमको। रे डायग्राम ड्रॉ करते टाइम प्रिंसिपल सेक्शन से बेंडिंग दिखाना है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है सपोज। तो अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90, मतलब ये नॉर्मल है, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग नॉर्मली, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो हियर। तो कोई बोलेगा सर मैं रे ऑफ लाइट को यहां से डालता हूं ऐसे, हाँ तो भी इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे ऐसे, अगर इफ यू इमेजिन यहां भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के तरफ इंसिडेंट होती है, when it touches the surface of the lens it always strikes normally. That is the position, because it's a geometrical center of the lens, it's a symmetrical position in the body of the lens. तो वैसी ज्योमेट्रिकल पोजीशन है जहां पे आने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट हमेशा नॉर्मली आती है, इसलिए विदाउट डेविएशन चली जाती है आगे। तो ये रे ऑफ लाइट आगे चली जाएगी डायरेक्टली विदाउट डेविएशन, ये रे भी आगे डायरेक्टली चली जाएगी, बिकॉज वो हमेशा नॉर्मली स्ट्राइक करती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है इसके लिए। दैट इज अ रीजन, ओके, नो नीड टू no need of getting stuck over there, but you need to once say loudly the definition without reading. Yes, of course, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो नॉर्मल भी चेंज होगा ना। क्यों, अगर अलग पोजीशन से रे आ रही है ओ की तरफ तो वो अलग पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, वहां नॉर्मल बनाना पड़ेगा तुमको, बिकॉज द अपर्चर इज सो ह्यूज। हर पॉइंट पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही है, हर पॉइंट पे नॉर्मल होगा, हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। हाँ तो वही, ये सारी रे कहाँ पे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर। सो जिस पोजीशन पे ये ऑप्टिकल सेंटर है वहां पे जो नॉर्मल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल जो बनेगा इंसिडेंट रे का वो हमेशा नॉर्मल होगा, 90 डिग्री होगा। You need to say this definition once. Don't read it. Close your eyes and say it. Come on. 1, 2, 3. Stop. पहले पढ़ लो।
तुम्हारा जोश ही ऐसा मरा हुआ है. ऑप्टिकल सेंटर, आई डोंट वांट टू से. Optical center is a point through which, if a ray of light is incident, it passes without deviation after refraction. ठीक है. 1 2 3. फेयर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थर्ड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सुनो मेरे को, मैं नहीं लिखवाऊंगा ये, पहले सुनो. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस. Center of curvature of a spherical lens is the center of the sphere of which the surface of the lens is a part. ये मैंने पहले भी बताया था मिरर के टाइम पे, सेम चीज है. Center of curvature of a spherical lens is the center of the sphere of which the surface of the lens is a part. ये लेंस की सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. Center of curvature of a spherical lens is the center of a sphere of which the surface of the lens is a part. 1 2 3. Stop. Again. 1 2 3. Center of curvature. Stop. पीछे कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल सेंटर ऑफ, ऐसा कोई जो मम्बल कर रहा है. मतलब उनको लगता है कि बाकी लोग बोल देंगे और हम लोग सिर्फ ऐसे, वो पंडित लोग बोलते हैं ना मंत्र. पूजा कभी करवाई है तुमने? मुझे पंडित लोग बहुत ही, मुझे ड्यूपियस लोग लगते हैं लोग. क्योंकि एक पंडित होता है जिसको नॉलेज होता है, और उसके साथ दो आते हैं और सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स. वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर से आवाजें निकालते हैं. They don't know what the they are saying, man. We don't know. वो सिर्फ फिर एंड में ना क्या होता है पता है? पूजा में एंड में every mantra end on a high note. Okay, so everybody says ओम स्वाहा, तभी सब लोग बोलते हैं. बाकी ये लोग ऐसा खुजली कर रहा है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है. जजमान थोड़ा खिलाइए समोसे वमोसे लाए. उनको उसमें इंटरेस्ट है, बाकी कुछ नहीं. दक्षिणा समोसे लड्डू. वेरी ड्यूपियस पीपल मैन. एक मिनट. हेलो. हाँ बोलिए. आप मुझे, हाँ आप मुझे 7 o'clock के बाद कर सकते हैं फोन, या फिर कल. अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ. थैंक यू. ओके. सो डोंट बिकम अ पंडित. ओके. से लाउड एंड क्लियर. Center of curvature of a spherical lens is the center of a sphere of which the surface of the lens is a part. 1 2 3. एक तो मुंह पे तुम लोगों ने मास्क पहना है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है. ये मुझे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन यहाँ पे. आई डोंट नो मैन. ठीक है पहने रहो मास्क. आई ट्राई टू गेज हु इज द कल्प्रिट. तो एक गेम हो गया यार. चाइनीज विस्पर. ओके 1 2 3. नहीं मैं देख सकता हूं. ये मतलब मैं देखूं तो तूने बंद कर दिया बोलना. अब तू अकेला बोलेगा. अब मैं तेरे को ही देखूंगा, तू अकेला बोलेगा. 1 2 3. सर 2 मिनट रुको. नहीं ये क्या गलत बात है. Center of curvature of a spherical lens is the center of a sphere. Part of नहीं, of which the surface of the lens is a part. Of दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा. उपासना. यस. 1 2 3. नहीं. Center of curvature of whom?
सरफेस इज अ पार्ट. फिर से विदाउट मिस्टेक. of which the surface of the lens is a part. तुमने सरफेस नहीं बोला और पार्ट ऑफ बोला. हिया. Why? You're not able to understand. अंडरस्टैंड तो पहले ही हो गया था. हम तो लर्न कर रहे हैं. आई नो देर विल बी. यू आर नॉट लाइक. अच्छा चलो बोलो. ए फॉर एप्पल. ये तो याद रहेगा ना यार. तुम 10th में हो यार. कॉम्प्लेक्सिटीज तो होगी ना एजुकेशन में. ऐसा थोड़ी होगा कि इतना सिंपल सिंपल तुम्हें बता दूं. देखो मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में इसलिए हम लोग बिल्ड कर रहे हैं बेटा. डेफिनेशन में रट्टा नहीं मरवा रहा हूं तुमसे. हम लोग बिल्ड कर रहे हैं डेफिनेशन ताकि तुम भी अपना डेफिनेशन बना सको. वो भी टेक्निकल टर्म्स में. लैंग्वेज तो यूज करनी पड़ेगी अपने को. वी कैन नॉट मेक इट वेरी वेरी सिंपल. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर. सुन 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 सुन. तू सुन पहले. तेरे को लिखने की याद करने की कोई जल्दी नहीं है. समझ पहले. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, spherical lens, is the center of a sphere of which the surface of the lens is a part. हो गया. बोल दिया तूने. ऐसे मत बोलो कि हम नहीं मानी कर पाऊंगे. ऐसे मत बोलो. चलो 1 2 3. lens, spherical lens is the center of a sphere of which surface of a lens is a part. करेक्ट. बहुत अच्छा किया. ठीक है ना. क्लियर. चलो नेक्स्ट. रेडियस ऑफ कर्वेचर. जहां जहां सेंटर बोला वहां वहां रेडियस डाल दो और कुछ नहीं करना. Radius of curvature of a spherical lens is the radius of a sphere of which the surface of a lens is a part. एक बार बोल दो बस. 1 2 3. Lens is a part. Fifth, without any delay, I am going to principal focus. And this principal focus का दो definition है. One for convex lenses and other for concave lenses. तो इसको जरा समझना है क्योंकि दो अलग डेफिनेशन हो जाएगी यहां पे. पहले तो ये वाला. This point we are defining F, that is principal focus. Principal focus of a convex lens. Principal focus of a convex lens is a point on the principal axis such that. शुरुआत कैसे करनी है. Principal focus of a convex lens is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, they converge and meet at this point after refraction. स्टोरी का जो पूरा फ्लो है उसको समझो. पहले हम वो पॉइंट का लोकेशन बताते हैं. स्टोरी में पहले हम पॉइंट का लोकेशन बताते हैं. फिर हम बताते हैं कि रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है और कहां पे मिल रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन. बस यही है. फिर से बताता हूं. प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, they converge and meet at that point after refraction. Khatam. Principal focus of a convex lens is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, they converge and meet at that point after refraction. Can you try? 1 2 3. मैं भी बोलूंगा. Principal focus of a convex lens is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, they converge and meet at that point after refraction.
समझ में आया? दिस इज हाउ यू बिल्ड अ डेफिनेशन, यू डोंट लर्न द डेफिनेशन। तो इसमें सारे वर्ड जो भी अपनी टर्मिनोलॉजी थी, जो लैंग्वेज थी, वो प्रॉपरली प्योरली टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है। वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, इन फैक्ट वी आर मेकिंग इट ग्रामेटिकली मोर एक्यूरेट। कोई भी इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ठीक है? सो कोई अपने मार्क्स नहीं काट सकता। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे एनसीईआरटी एस चांद में फर्क होगा, लेकिन हमारा डेफिनेशन गलत नहीं है। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड अ डेफिनेशन, ठीक है? ये हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब आएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। सबसे पहले लिख लो ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। मैं एक बार और बता देता हूं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, they converge and meet at that point after refraction. ठीक है? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ध्यान से सुनना, क्योंकि दिस इज लिटिल डिफरेंट, ठीक है? प्रिंसिपल फोकस of a concave lens is a point on the principal axis, same as above, is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, yahan tak same hai puri definition, they diverge and appear to be coming from this point after refraction. They diverge and ऐसा लगता है कि वो वहां से निकल रहे हैं, appear to be coming from this point after refraction. Principal focus of a concave lens is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, they diverge and appear to be coming from this point after refraction. ठीक है? No, you have to say with me once and then write it. 1, 2, 3. Principal focus of a concave lens is a point on the principal axis such that when the rays of light are incident parallel to the principal axis, they diverge and appear to be coming from this point after refraction. लिख लो। Sixth definition is focal length. Focal length.
वेरी इजी. Focal length is the distance between principal focus and optical center of a spherical lens. ये भी दोनों के लिए कॉमन है. फॉर बोथ ये दोनों भी कॉमन थी. Focal length is the distance between principal focus and optical center of a spherical lens. बस लिख लो, इजी है. साइन कन्वेंशन के बारे में हम अलग से बात करेंगे. ठीक है. नाउ देर इज वन रिलेशन विच यू शुड नो between focal length and radius of curvature. Focal length is half the radius of curvature. So if you draw a lens ठीक है, and this is the optical center. So suppose here is the focus. This is first focus. It has two focus, two foci. Focus is singular and its plural is foci. So it has two foci, f and f dash, या f dash and f. And यहाँ पे exactly उससे double distance पे होगा center of curvature, that is c dash and c. So it has two centers of curvature, two foci. And always remember focal length small f is equal to radius of curvature divided by 2, or radius of curvature is twice the focal length. ठीक है. So this is one relation which we will come across. Okay, so generally what happens is ये convex lens का एक figure दिखा है यहाँ पे. ray of light यहाँ से आती है, it will suffer a refraction at this surface, फिर वो यहाँ पे जाती है and it will suffer another refraction. But this is very difficult to draw, suffering two refractions at two surfaces. So generally we consider the lens to be a thin object, thin, not very thick. So ये जो double refraction हो रहा है at the time of entry and exit, उसको हम simplify कर सकते हैं. How? By drawing this kind of a dotted line, जो मैंने पहले भी बताया था. तो ये dotted line को बोलते हैं principal section. So what you do is you just bring the ray of light inside up to the principal section और वहां से उसको तुम bend कर दो. और ये सब तुम्हें geometrical construction से नहीं करना है, अंदाजे से करना है. So if it is a convex lens, the rays of light will converge. And if it's a concave lens, the rays of light will diverge. So you have to do it from the principal section. That is the dotted line in between the lens. जैसे यहाँ पे दिखाया है. As you can see, the rays of light are coming up to here and then they are bending to meet at point F2. Okay, और एक चीज, ये कौन सा लेंस है?
कॉनकेव, इसका फोकस यहां पे, ठीक है, यहां पे लिखा है F1। कॉनकेव का जो फोकस होता है ना, वो कैसा होता है पता है? वर्चुअल। इट हैज अ वर्चुअल फोकस, मीन्स द रेज ऑफ लाइट आर नॉट एक्चुअली मीटिंग at that point or not actually coming from that point. The rays of light are they are appearing to be coming from that point. They appear to be coming from that point. And in convex mirror, convex lens, the focus is real focus, because the rays of light are actually converging and meeting at that point after refraction. So it has a real principal focus. Have you ever done this kind of experiment to burn the paper? What kind of glass is used in magnifying lens? Convex. Why convex? Because they will converge the ray of light to a point at which, if you put a piece of paper, the sun rays which are converging, they will burn the paper because of lot of heat converged at one point. Okay, so now we are going to start drawing the ray diagrams. So before we start drawing the ray diagram, some rules which I have set, that no one will use measurements to draw ray diagrams. These are to be drawn using pencil and scale. If you want to use a compass, you can, but I suggest you don't even use compass. If you want to draw the lens, draw it with free hand. ठीक है, फ्री हैंड कर्व बनाओ, लेंस बनाओ, मेजरमेंट यूज नहीं करना है, पेंसिल स्केल का यूज करना है, विदाउट मेजरमेंट करना है, अंदाजे से करना है। टेक्निक्स मैं बताऊंगा कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बट डोंट यूज मेजरमेंट्स। So first thing is we are going to start with the ray diagrams of convex lenses. And before drawing the ray diagrams for convex lenses, we should know the rules for obtaining images by a convex lens. These are very similar to the rules which we have studied for obtaining images using mirrors. स्फेरिकल मिरर में जो रूल यूज किए थे, ये वैसे ही रूल है, सिर्फ यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो रूल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। So there are three basic rays or three basic rules which we are going to follow to construct a ray diagram. तुम्हें ये तीनों फिगर बनानी है, बट पहले समझ लो ये क्या है। रूल वन ये फिगर 1 में दिखाया है। if an incident ray of light if a ray of light is incident parallel to the principal axis, it converges and passes through focus after refraction. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया, तो वो कन्वर्ज होके फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ रे विच वी कैन यूज while drawing ray diagrams. This is type 1 ray. Type 2 or rule 2, a ray of light which is incident through the focus, it becomes parallel to the principal axis after refraction. जो फोकस में से इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, जो पैरेलल इंसिडेंट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चली जाती है। यू अंडरस्टैंड? ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, एक पैरेलल जाके रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चली जाती है, एक फोकस से जाती है और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। सो दीज आर टू रूल्स। एंड द थर्ड रूल, a ray of light incident through the optical center passes through the lens undeviated after refraction. मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करोगे कहीं से भी, बट इफ इट passes through optical center, it will pass undeviated after refraction. You need to draw these three diagrams with the lenses and the rays. Please draw them. I'll give you some time. आराम से ड्रॉ करो, नीट ड्रॉ करो, ऊपर हेडिंग भी देना, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, तो पता चले। These are not ray diagrams, these are just the rules.
Done? Okay, let's now begin with the ray diagrams. So, before we start with the ray diagrams, you should know few facts. That in convex lens, there are 6 positions of objects in front of the lens, for which there are 6 different positions and nature of images obtained. Before you start drawing ray diagrams, you must remember the positions of objects and the respective images, positions of images and the nature of images and the size of images. तो ये एक टेबल है, तुम्हारी बुक में भी होगा ये टेबल. ये टेबल में they have given 1, 2, 3, 4, 5 and 6 positions of objects. ये 6 पोजीशन के लिए इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज की साइज कैसी होगी और इमेज का नेचर कैसा होगा. इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको. तो तुम्हें इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन ऑफ इमेज, लोकेशन बोलते हैं इसको, एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा टेबल. क्यों करना पड़ेगा लर्न? बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ द रे डायग्राम्स, remember that you are not doing geometrical construction. So if you ask me why not geometrical construction, because if you go and do geometrical construction, then you remember that you have to construct parallel lines also, and that is a huge long process. We will be, if you want, you can do those you can take compass and measurement of location of focus and radius of curvature and everything, but that will not be easy because parallel lines cannot be constructed very easily. So that means we are not doing geometrical construction. So our position, location of image, nature of image, image characteristic might be different. ठीक है, इसके लिए तुम्हें ये टेबल याद होना चाहिए. तो मैं with respect to this table, हम मान लेते हैं कि तुम्हें ये टेबल याद है, and with respect to this table I'll show you, I'll draw one ray diagram and I'll show you कि कैसे दिखेगा ये. ठीक है, और कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी टेक्निक्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा. तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे.
और ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। सो नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसके दो रे डायग्राम्स हैं, लेट मी शो यू बोथ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले लेंस बना लो, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, फिर प्रिंसिपल सेक्शन बना लो, फिर ऑप्टिकल सेंटर बना लो। ये तुम्हारा लेआउट रेडी हो गया। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी? ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है। इन्फिनिटी इज अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस। वी डोंट हैव अ नंबर फॉर इन्फिनिटी, एंड फार ऑफ मीन्स देयर कैन बी एनी डिस्टेंस विच इज फार। जैसे लेंस अगर इतना छोटा सा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी यहां से सामने वाले बिल्डिंग तक होगा, या सामने वाली ट्री होगी इन्फिनिटी, बिकॉज दैट इज फार डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है, उसके लिए ऑब्जेक्ट को दिखाना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू चूज टू रेज, both of them are parallel to the principal axis, one above the principal axis and one below the principal axis, like this. Now I ask you that if there are two rays, if a ray incident parallel to the principal axis, what will happen to it after refraction? It will converge and pass through the focus. So that means this will pass through the focus like this. Now you will ask me, sir, you didn't mark focus, you didn't even measure, but you just constructed it. And that is the way. You don't have to measure. I told you, अंदाजे से फोकस बना दो उधर। अब तुम्हें पता है इसको कहां से पास करवाना है। You have to pass it through the same point. So they will pass through the same point. और यहां पे क्या आएगा? F, फोकस। तो मैंने पहले फोकस से पास करवाया और उसके बाद लिखा वहां पे फोकस। दैट इज अ स्मॉल टेक्निक विच आई एम गोइंग टू यूज इन ऑल द रे डायग्राम्स, ठीक है। सो ये क्या हो गया? यहां पे एक इमेज बन गया। अब इमेज कैसा है, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग खुद बनाएंगे और इसको वो टेबल से कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसा इमेज बन रहा है। नाउ द रेज ऑफ लाइट आर मीटिंग एट फोकस, सो इमेज इज एट फोकस। इमेज कहां पे बन रहा है? फोकस। ये क्या है? लोकेशन। किसका लोकेशन? ठीक है, इमेज लोकेशन। इसके बाद इमेज कैसा होगा? इमेज विल बी रियल। रियल क्यों होगा इमेज? बिकॉज द रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीटिंग एट फोकस। अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज होगा। हमेशा याद रखना, जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड भी होता है, ये मैंने मिरर में भी बताया था। तो रियल के साथ एंड इन्वर्टेड लिख ही देना है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया नेचर, ठीक है, ये लोकेशन, ये नेचर। अब साइज की बात करेंगे। साइज, अब यहां पे दिख रहा है तुम्हें कि फोकस पे मीट कर रही है दोनों रेज ऑफ लाइट, मतलब एक पॉइंट पे इमेज बन रही है, पॉइंट जैसी इमेज। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, एंड इट इज पॉइंट साइज्ड। कैसी है इमेज? हाईली डिमिनिश्ड है, और कैसी है? पॉइंट साइज्ड, पॉइंट जैसी छोटी है, ठीक है। क्या हो गया तुम्हारे पास? लोकेशन, नेचर एंड साइज। और ये तीनों को क्या बोलते हैं? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रे डायग्राम साथ में इमेज कैरेक्टरिस्टिक अगर प्रॉपरली बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसका एक दूसरा भी तरीका है, दूसरा एक वेरिएशन। सो मैंने पहले बना दिया लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर।
Now the rays are coming from infinity. Still I am dealing with object at infinity. ठीक है, but how are the rays coming? One of the ray is coming obliquely and striking the optical center. Can you tell me how will it refract? It will after refraction it will pass undeviated. It will go straight, it will not refract. And another ray is just striking above it, above the incident ray, but parallel to it. ठीक है, अब यहां पे तो ऐसा कोई रूल हमने पढ़ा ही नहीं. We have not studied any rule which says what will happen to this ray which is coming obliquely and striking the lens. So this ray, you can just remember this, you can extend it. Oops, एक मिनट, मेरे पास कोई स्केल कुछ नहीं है and it's highly uncomfortable to draw on this, but still you can pass it like this. मतलब कन्वर्ज तो होगी ये और ऐसे पास हो जाएगी. अब तुम बोलोगे सर आपने मीट कहाँ पे करवाया? मैं बोला कहीं भी मीट करवाया, उससे कोई मतलब नहीं है. जहां पे मीट हो रहा है वो अपने मतलब की चीज है. तो यहां पे तुम बना दो तुम्हारी इमेज, ठीक है, और ये इसको नाम दे दो एफ. तो तुम्हें याद होना चाहिए कि इन्फिनिटी से जब रेज आती है तो वो कैसे भी आए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए या ना आए, वो मीट कहां पे करेगी? एट फोकस. अब ये एट फोकस नहीं है बट जस्ट बिलो द फोकस है. मतलब इसको बोलते हैं फोकल प्लेन. फोकल प्लेन पे मीट कर रही है, वही फोकल वाला ही प्लेन है, फोकस वाला. ठीक है, यहां पे इमेज बन रही है. ठीक है, सो इसको इमेज को नाम दे दो ए डैश बी डैश. यस, नहीं होगा ना इमेज, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं. यहां पे जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे थे तब पॉइंट साइज्ड होता था, बट यहां पे पैरेलल आ रहे हैं नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉइंट साइज नहीं होगा, तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी. कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा. लोकेशन क्या होगा? एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड. दिख रही है इन्वर्टेड भी यहां पे, रियल तो है ही. एंड इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, नॉट पॉइंट साइज बट हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड इसलिए क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट आ रही है इन्फिनिटी से. कोई ट्री की इमेज है ये, और ट्री इतना छोटा दिखेगा तुम्हें, मतलब हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, सो दिस इज द इमेज कैरेक्टरिस्टिक. नाउ वी विल कंफर्म दीज इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन विद द टेबल हियर. इज इट एट फोकस? Is it highly diminished? Is it real inverted? Yes. Is it point sized in the first case? Yes, it was. यहाँ पे एक ही केस बताया है, दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया है वो नहीं बताया, कोई बात नहीं है. हाँ, पैरेलल ही है ना ये. देखो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है. ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, तो ऐसे भी रेज हो सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी में है, लेकिन इट्स वेरी फार. दिस इज नॉट वेरी फार एट इंफिनिटी बट कंपैरेटिवली नियर, इसलिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है. ऐसा है, बट पैरेलल ही होंगे रेज, मतलब एक दूसरे से पैरेलल होंगे. ये वाली रे का नहीं है, बाकी सबका है. बाकी सबको मैंने रूल फॉलो करवाया, इसका नहीं है कुछ भी. ये वाली रे का जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो दैट इज जस्ट कन्वर्जिंग. So that's why I told you that for drawing ray diagrams you need little bit of knowledge, pre-knowledge of where the image will be, what are the image characteristics are. Otherwise what will happen that if you depend completely on geometrical construction you can never complete your ray diagram. And in exam you don't have time, ये measurement करो, ये करो, वो करो. You are concerned with image कैसी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, image characteristics क्या है, और इसमें लेंस को कैसे यूज किया जा सकता है. Means you are trying to understand the lens, not understand how to draw the image. ठीक है, ओके. सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. सेकेंड पोजीशन क्या होगा? मैं इसके राइट में बनाता हूं.
सो सेकेंड पोजिशन, अब मैं फिर से प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस को कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, और यहां पे ऑप्टिकल सेंटर। नाउ अच्छा, एक चीज मैंने, जो तुम्हारी बुक की भी टर्मिनोलॉजी है उसको ही हम फॉलो करेंगे। ये होगा F1, ठीक है, F1। तो ये साइड होगा F2। कॉनकेव में थोड़ा अलग होगा, वो देख लेंगे जब भी। यहाँ पे F1 है। F1 है, F2 है? F1 है, F2 है? F2 है, सॉरी 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 सॉरी, F2 है, F2। तो ये साइड जो होगा वो क्या होगा? F1। उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले मत बना देना, जितने डिस्टेंस पे F2 मिल रहा है तुम्हें उतने ही डिस्टेंस पे पीछे F1 बनाना, जरूरत है तो, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से थोड़ा पास आ गया, बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग यहां पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है A, ये है B। देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा वर्टिकल बनाना, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, उसको नाम दे देना AB। अब तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया, पहले इन्फिनिटी पे था, दिख रहा ही नहीं था, अब वो दिख रहा है ऑब्जेक्ट। अब यहां से दो रेस हमें बनानी है लेंस पे जो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज मार्क कर लो। जैसे यहां पे तुम मार्क करोगे C1, यहां पे तुम मार्क करोगे F2। F2 C1 और O के बीच में होना चाहिए, एग्जैक्टली F1, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। लेंस से छोटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लेंस से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो अंदाजे से करना है, ये भी कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं। अब तुम्हें दो रेस सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ द थ्री रूल्स विच यू हैव स्टडीड। वन, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। थर्ड, पासिस थ्रू द फोकस। कौन सी सिलेक्ट करूं? पहले तो पैरेलल वाला फेवरेट है सबका, वही सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज वन रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Now I'm going to do a gamble. That is because I don't remember कि image characteristic कैसी होगी, ठीक है। So what gamble I'm going to do is, मुझे अंदाजे से पता है कि F2 कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना दिया, और इसको क्या नाम दिया मैंने? सही है ना? The ray of light which is incident parallel to the principal axis passes through the focus after refraction, ठीक है। एंड सेकेंड वन विच आई एम गोइंग टू मेक इज, ऑप्टिकल सेंटर से मैं इसको पास करवाता हूं। थोड़ा टेढ़ा है, प्लीज डोंट माइंड इट। यहां पे मीट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने आगे, और इसको मैं बनाऊंगा A', B'। अब मुझे ये लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पे होगा तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो गलत है। एक्चुअली बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, ये बिटवीन C2 एंड F2 है। बट मेरी लाइन क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो मेरा ऐसे लाइन बन रहा है। तुम अगर बनाओगे अंदाजे से तो तुम्हारा आएगा सही। सो दिस इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द लेंस। लेट मी चेक पोजिशन बिटवीन F2 एंड 2F2। व्हाट इज 2F2? 2F2 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो तुम C2 या 2F2 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने C1 लिखा है। Let me change, let me keep the terminology as per your textbook. It doesn't make any difference. So this is 2F1, this is 2F2, ठीक है। सो ये दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है, और यहाँ पे कैसी इमेज बन रही है? पहले तो लोकेशन, लोकेशन क्या है? बिटवीन, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा ये, ठीक है। इमेज लोकेशन बिटवीन F2 एंड 2F2,
ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट? नेचर, रियल क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही है, एंड इन्वर्टेड, ठीक है, एंड साइज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड तुम मेजर कर सकते हो अंदाजे से, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है, शायद सेम साइज दिख रहा है बट वो छोटा ही होता है। अगर तुम्हें नहीं याद है तो टेबल को रेफर करो, इसलिए टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। देखो डिमिनिश्ड, बार बार मैं टेबल को रेफर करने की बात करता हूं बिकॉज इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एन एक्यूरेट रे डायग्राम विदाउट रेफरिंग टू द टेबल, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग कंस्ट्रक्शंस, दैट्स व्हाई बार बार बोलता हूं मैं। अच्छा, एक इसमें एक ट्रिकी पोजीशन है जो अभी आने वाली है, ये मैं डिस्कस करता हूं तुम्हारे साथ, बाकी की पोजीशन तुम खुद ड्रॉ करोगे। सो ये तुम्हारा लेंस बन गया, सब कुछ बन गया। यहां पे मैं अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आऊंगा। ऑब्जेक्ट वॉज एट इंफिनिटी, देन बियॉन्ड 2f1, नाउ इट इज एट 2f1। ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा बना दो यार, बहुत बड़ा बन गया है। Actually, that will not be valid. That will not be valid because you will not get a complete image. So you cannot judge the characteristics. हम्म, हाँ, तो फिर वो रेज ऑफ लाइट एंटर करेगी, then it does not matter. But if it's not at infinity, you cannot draw a bigger object. ठीक है, so this is 2f1. Now, you need to use some cheat codes. थोड़ा चीटिंग करना सिखाता हूं मैं तुम्हें। एक चीज याद रखो कि whenever the object is at 2f1, the image is also formed at 2f1. तो यहां पे 2f2 बना दो, 2f2, ठीक है। अच्छा, कैसे बनाना है? इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों की साइज सेम बना दो। तो पहले मैंने इमेज ही बना दी, पहले मैंने इमेज कंस्ट्रक्ट कर दी। अब क्या करूंगा पता है? सीधा इनको ज्वाइन करूंगा मैं, सॉरी, ठीक है। क्या, कौन सी रे है ये? जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है अनडेविएटेड। दूसरी रे कौन सी होगी? पैरेलल, और कहां से जाएगी? फोकस से। फोकस छोड़ दो, डायरेक्ट इसको मीट कराओ। फोकस जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा f2, हो गया। सो मैंने क्या चीट किया इसमें? मैंने पहले ही इमेज बना दी, क्योंकि मुझे वो टेबल याद था कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होनी चाहिए। तो पहले बना दी, और इमेज कहां पे होगी वो भी मुझे पता था, 2f2 पे। तो मैंने बना दो, फिर ज्वाइन कर दो। कोई मार्क्स नहीं काटेगा यार, तुम्हारा एक भी मिस्टेक नहीं है इसमें। ना कोई तुम्हें मेजर करने के लिए बैठता है कि ये कितना है, ये कितना डिस्टेंस, कोई नहीं मेजर करता। तुम सिर्फ वो लोग देखते हैं कि तुम्हें पता है कि नहीं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोकेशन क्या होगा? एट 2f2, इमेज का लोकेशन, इट विल बी रियल, इन्वर्टेड, and it will be of same size as that of the object. ये जितनी मैंने तुम्हें टेक्निक्स बताई, अगर इससे आगे कंटिन्यू करोगे तुम, कीपिंग इन माइंड द रेफरेंस टेबल ऑफ image characteristics and location, then you will construct each and every image appropriately, जैसे होनी चाहिए। ये लोग ने आई थिंक उल्टे गए हैं, पहले इन्फिनिटी वाला बनाया है, फिर ये कौन सा है? बियॉन्ड 2f2, 2f1, फिर ये कौन सा है? एट 2f1, फिर बिटवीन 2f1 एंड f1, और यहां पे मैग्निफाइड इमेज मिलती है, ठीक है, बियॉन्ड 2f2। फिर एट f1 जब होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज मिलती है इन्फिनिटी पे। वो इंटरसेक्ट ही नहीं करते क्योंकि ये पैरेलल रेज बन जाते हैं दोनों, ठीक है। और
ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम इन कॉन्वेक्स लेंस यू गेट अ virtual erect and a magnified image when the object is very close to the lens between focus and optical center. जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है यू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज, हाईली मैग्नीफाइड, एंड इट इज बिहाइंड द लेंस, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट जो रिफ्रेक्ट होती है ना, ये दोनों तो एक दूसरे से दूर जा रही है. इफ यू कैन सी, डू यू सी दिस डिस्टेंस? The rays of light are actually diverging, so they will meet? No. But if you produce them backward, they will meet behind the lens. And here, a virtual erect and highly magnified image will be formed. So this is one use of convex lens where the object to be magnified is kept near the lens. जो मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं ना लोग, वो नियर रखते हैं. जिसको मैग्नीफाई करना है उसको दूर नहीं रखते हैं. दूर का मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता, नियर का होता है, तो हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है. सो दीज आर ऑल द रे डायग्राम्स विच यू हैव टू कंस्ट्रक्ट. ठीक है, आई थिंक मैं आज सब कुछ क्रैम करके एक दिन में नहीं भरना चाहता. आई मे कीप एन एक्स्ट्रा क्लास दिस वीक, सो डू कम फॉर दैट. आई हैव टू आस्क अदर टीचर्स, जब होगा सेट तो मैं बुलाऊंगा तुम्हें. एंड देन देर इज लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. फिर कॉनकेव लेंस की सिर्फ 2 रे डायग्राम्स है, ये हमें करनी है. लेंस का फोकस वो निकाल के फिर से मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ. सर एक लेंस है उसका फोकस वो मिलेगा कैसे? फोकल लेंथ, सॉरी फोकस कहाँ पे है. पता कैसे? हाँ, तो उसके लिए 2-3 एक्सपेरिमेंट्स है. एक तो वाइट स्क्रीन एक्सपेरिमेंट है. सो व्हाट यू डू इज यू कीप अ वाइट स्क्रीन लाइक दिस एंड उसके आगे एक टेबल रखते हैं, और वो टेबल पे एक स्केल होती है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं छोटा सा. फिर वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखते हैं, और फिर वो जो लेंस है उसको स्लाइड करते हैं आगे या पीछे वो स्केल के ऊपर, और जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है वहां पे वो रोक देते हैं, तो वो उसकी फोकल लेंथ है, मतलब वो उसका फोकस है वहां पे. सो यू डोंट फाइंड द फोकस, यू फाइंड द फोकल लेंथ, एंड दैट इज द पोजिशन ऑफ फोकस. सो दैट्स वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो आज इतना ही करते हैं. वी एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड द लेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंस. वी डिड टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस को लर्न किया हमने, और रे डायग्राम्स भी शुरू कर दिए. ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो हो जाएगा खत्म. चलो, स्टॉप द रिकॉर्डिंग.